और कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप ठीक हैं? हम्म। शुक्रिया ज्वाइन चंद करने के लिए। हाँ, चंदन भाई आपको भी नमस्ते। नबीला मैम नमस्ते। नमस्ते सर। सर हम लाइव हो चुके हैं, सो शुरू करते हैं। यस ओके, तो I welcome all of you to this very exciting session of Read with a Teacher, and this is the second week of February, and almost across the world people celebrate it for love and freedom. And I think we could not have chosen the more apt book for this occasion than this Summerhill. This is the book which actually celebrates the intrinsic love that a child offers to the world around, and how teachers and adults can capture it and can actually weave a pedagogy of love, concern, and care along with this intrinsic nature of the children. So, this book, Summerhill, is actually the experiment कि कैसे हम जो हमारा एक ट्रेडिशनल नोशन है कि बच्चों को कुछ आता नहीं है और हम उनको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, एक डिसिप्लिनेरियन जो अप्रोच है उससे हट करके दुनिया का यह एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट लंदन मतलब यूके में एक स्कूल है समरहिल जहाँ पर नील ने किया, डॉक्टर नील, और उस प्रयोग को हम लोगों ने उन्होंने ही इस किताब में कैप्चर किया है, उन्होंने इसको लिखा है। एंड इट हैज बीन एन exhilarating experience to read it. बहुत ही मजेदार। और हम मेरे साथ हमारे साथी हैं नबीला जिलानी जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, एंड चंदन जी जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और हमेशा हमारे साथ किताब को पढ़ते हैं। तो मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो यहाँ पे हैं और जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, जो आगे के टाइम में देखेंगे। वी ऑलवेज बिलीव कि along with sharing the joy of reading, we are also contributing to the body of knowledge. किसी को कभी देखना हो कि इस किताब पे कैसी डिस्कशंस है, तो we are adding it, particularly from the standpoint of the teachers, which are very unique in the public domain. You do not find much discussions around the body of knowledge that too by the teachers. वो बहुत available होता नहीं. So cutting it short, once again, welcome all of you. And before coming to Nabila ji, who is our colleague, mentor teacher, I would just read few lines from the book only in the introduction. The difficult child is the child who is unhappy. He is at war with himself, and in consequence, he is at war with the world. No happy man ever disturbed a meeting or preached a war, or lynched a Negro. No happy woman ever nagged her husband or her children. No happy man ever committed a murder or a theft. No happy employer ever frightened his employee. All crimes, all hatred, all wars can be reduced to unhappiness. This book is an attempt to show how unhappiness arises, how it ruins human lives, and how children can be reared so that much of his unhappiness will never arise. तो this जो इनका प्रीफेस है उसको लिखा था वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन में, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है कि कैसे पेडागोजी में इतने बड़ी चीज़ों को इन्होंने अनहैप्पीनेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एंड इट शोज दैट हाउ इवन कीपिंग इन माइंड कि हम बच्चों को हैप्पी रखते हुए भी कैसे पढ़ाई लिखाई करवाया जा सकता है, जिसको हम मान के चलते हैं कि शायद असंभव काम है। सो विल सी दिस कि क्या क्या इसमें हुआ। आई वेलकम नबीला जी नाउ। नबीला जी, welcome to this forum, Read with a Teacher. And I would Thank like you, you sir. to share with us in the beginning only, before coming to the book, how you have reached in your journey of reading this book, because it has been a journey कि एक टीचर रहते हुए आप इतने लंबे टाइम तक किताबों को पढ़ती रही हैं और उस कड़ी में ये एक किताब भी है। तो आई एम ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट जर्नी, दैट व्हाट हैज केप्ट यू इंस्पायरिंग कि आप पढ़ती लिखती रही। Thank you so much, Murari sir, for this warm welcome. I have been in teaching for the last almost 17 years. So, and I have been a teacher, a student of literature.
like English honors. I graduated in English literature and post-graduated in again in English literature. So reading has always come naturally to me. Since childhood, I used to read fantasy and I used to read fairy tales and all. So while after joining my teaching career, I was bound to read some book or the other, partly out of habit and partly because the responsibilities as a teacher required me to update myself in knowledge. So I have been reading quite a lot some time ago, but a few years back, this habit was, how I became out of habit of reading. But then I pulled myself up again and then I got back to reading. I renewed my membership at the library so that I could, go back to the library, Sahitya Academy, and pick up some book or the other and read something at least. So this time, since last 2 years, I have started reading. Even if it is a little bit, I make it a point that I read, even if it is Reader's Digest or some journal or some article on the internet. I make it a point that I read something and, keep in touch with books. They give me immense pleasure. And this also came. Sir, I think you are on mute, Murari sir. तो आई एम टेलिंग कि आप लगातार कुछ ना कुछ पढ़ती रही हैं, है ना? Yes, sir. थोड़ा तो आपको बहुत, कभी थोड़ा ऐसा बहुत। लगा नहीं कि अब तो मैं टीचर बन गई हूँ, अब क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, बिजी स्केड्यूल की वजह से जब छूट गई आदत, कई सालों के लिए छूट गई, देयर यूज्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स इन मी कि मैं लिटरेचर की हूँ, मुझे तो और पढ़ना चाहिए. दैट kept pushing me and I got back to it. लेकिन हाँ, कभी ये नहीं लगा कि मुझे जरूरत नहीं है, because it always gives you something or the other. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. इस किताब को पढ़ते हुए भी एक चीज मुझे बार बार इसमें आता था कि पूछा जाता था उन्हें कि कोई बच्चा ये कैसे सीखेगा, तो ही हैज अ सिंपल आंसर कि अगर उसे सीखना होगा तो वो सीखेगा. राइट वो तरीका Yeah. ढूंढ लेगा. तो जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है और तरीका ढूंढ वो लेता है. पढ़ता है. राइट राइट. वेल तो नाउ आई वुड लाइक यू कि आप इस किताब को आपने पढ़ा है पूरा. हाउ हैज बीन योर इम्प्रेशन? कैसा किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है? तो शुरुआत में जो भी हमारे साथ लोग हैं उसको उनको एक ब्रीफ आप एक ओवरव्यू दे दीजिए और उसके बाद हम इसको सेक्शन वाइज देखते चलते हैं. चंदन जी, आप भी जब भी आपको लगे Yes, sir. टू ऐड समथिंग यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ऐड. बिल्कुल बिल्कुल. Please. Thank you so much for a detailed introduction. You picked up a very interesting instance and वो बहुत ही अच्छे से आपने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है बुक को. Honestly, जब मैंने पहली बार ये बुक आपके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है नबीला जी. इट गॉट स्टक. हाँ, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा. दोबारा वो बोलना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई. या All right. When I picked this book up, instantly मेरा जो रिएक्शन था वो ये था कि इसमें इतने पेजेस हैं. हाँ, मैं कैसे पढ़ूंगी. एंड इट इज आई वाज वेरी श्योर कि ये फिलॉसफी पे बेस्ड होगी. व्हेन इट इज ऑन एजुकेशन तो जरूर फिलोसॉफिकल ही लेक्चर्स होंगे. आई वोंट बी एबल टू रीड इट. बट देन आई थॉट कि जब मैंने इनिशिएटिव ले लिया है, आई डोंट वांट कि ये मतलब मुझे लगा कि रीडिंग है, इट कम्स नेचुरली टू मी, तो मुझे लगा कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगी. कुछ भी हो मैं पढ़ूंगी इसको. Then I picked it up and started reading it. And as Chandan sir had told me, it is really actually a smooth read. मतलब वो लग रहा था कि ये कैसे पढ़ी जाएगी. But when I started reading it, actually it's a very it goes very smoothly. और कोई भी इसको पढ़ सकता है. Anyone can read it easily. As the language, as the instances, they are all relatable, though they are from a different society, from a different country. But हाँ, जो उन्होंने जो भी instances लिए हैं, जो भी examples दिए हैं, they are all universal. Right. So I felt कि मैं पढ़ पाऊंगी और मैंने start करी. And yes, I could read it and understand it as well. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लू आपने शेयर किया कि आपने सोचा कि यू वॉन्ट गिव अप, आप छोड़ेंगी नहीं.
पढ़ के ही रहेंगी, राइट? मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये गलत बात हो जाएगी, बीइंग अ डिस्पाइट टीचर ऑफ इंग्लिश। डिस्पाइट कि इतने सारे पेजेस हैं, है ना, उसके बावजूद ये भी। ये ये या एक सो इट्स अ रीजन। वेरी फन रीडिंग एंड मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि इन अ सेंस कि उस वक्त साइकोलॉजी के फील्ड में जो फ्राइड है, उनकी जो डिस्कवरीज थी वो पूरी दुनिया में बहुत नई तरीके का एक अप्रोच लोगों के सामने ला रहा था। एंड आई थिंक ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइडेड टू टेक इट टू द स्कूल्स कि कैसे जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उसको आधार बना करके हम कैसे बच्चों की शिक्षा को केंद्र में रखते हुए उन्हें एक हैप्पी चाइल्ड बनाए, राइट? सक्सेसफुल चाइल्ड की बात वो नहीं करते हैं, हैप्पी चाइल्ड की बात करते हैं बार बार। एंड हम थोड़े से इसको सेक्शंस को देख रहे थे ताकि जो जी लोग सर। हमारे साथ हैं उनको एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो द बुक हैज लाइक मैं देख पा रहा हूँ कि अराउंड 7 सेक्शंस, राइट? और यस पहले सेक्शन में है समर हिल स्कूल के बारे में, जिसमें द आइडिया ऑफ समर हिल, लुक एट समर हिल, ये स्कूल का ही नाम। यस तो ये पूरा एक तरीके से स्कूल का पिक्चर देता है कि कितने जी बच्चे थे, कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके की एक्टिविटीज करवाए जाते हैं, सरकार के साथ कैसा संबंध था, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, एक एक तस्वीर देता है। दूसरा सेक्शन इसका चाइल्ड रेयरिंग के ऊपर है कि कैसे बच्चों को पाला जाए, और उसमें अपने एक्सपीरियंस से ये मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट इशूज व्हिच लाइक वी ऑल डील ऑन डेली बेसिस, लाइक ट्वाइस के संबंध में, मैनर्स के संबंध में, पैसे के संबंध में, ह्यूमर के संबंध में, हेल्थ एंड स्लीप, फूड, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लाइंग के संबंध में बहुत बोला गया है कि बच्चे झूठ कैसे बोलते हैं, एंड ही वेरी इंटरेस्टिंगली सी कि वही बच्चे झूठ बोलते हैं जिनके मम्मी पापा झूठ बोलते हैं, सो दे जस्ट कॉपी इट बेसिकली। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन बच्चों के सेक्सुअल लाइफ के ऊपर है, हाउ दे थिंक एंड हाउ दे बिहेव एंड हाउ स्कूल इंटरफेयर्स एंड द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उसके ऊपर एक सेक्शन है। चौथा सेक्शन जो है रिलीजन्स एंड मोरल्स के ऊपर है, जो कि एक बहुत बजवर्ड रहता है हमारे स्कूलों में कि हम कैसे मोरल वैल्यूज को अपने बच्चों में इनकलकेट कर पाए। तो नील यहाँ पे इन इश्यूज के साथ कैसे डील करते हैं उसको लेकर के है। मोरल इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड, सेंसरशिप, इन सभी बातों पे वो लिखते हैं फोर्थ सेक्शन में। फिफ्थ सेक्शन इज अबाउट चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स like cruelty and sadism, criminality, stealing, delinquency, curing the child, इन issues पे है। सिक्स सेक्शन पेरेंट्स प्रॉब्लम्स पे है, स्पॉइलिंग द चाइल्ड, और मुझे याद आ रहा है कि वो क्या कहते हैं कि नो चाइल्ड इज प्रॉब्लम चाइल्ड, इट्स अ प्रॉब्लम पेरेंट्स। एक्चुअली नहीं, आपसे जब बातचीत कर रहा था तो हमने इस लाइन को लाया था ना। तो ये है पेरेंट्स से जी। या तो पेरेंट्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और वो चाइल्ड तक कैसे आता है उसके बारे में इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। एंड क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेक्शन है जो आपको भी और मुझे भी बहुत ही शानदार लगा था इसको पढ़ते हुए, है ना। तो आई 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 नो कि आपने इसको पढ़ते हुए काफी सारी चीजें अंडरलाइन की है, आइडेंटिफाई की है। तो क्यों ना समरहिल स्कूल का एक परिचय कैसा था, कहाँ था, क्या होता था, आप अपने शब्दों में और कुछ पढ़ के भी हम सबके साथ शेयर करें, नवीला जी। श्योर सर। समरहिल was founded in 1921, 1921 में इसको एस्टैब्लिश किया A.S. नील ने। It is situated in the village of Leiston in Suffolk, England. इंग्लैंड में और ये स्कूल 100 माइल्स दूर है लंदन से। और इसमें ऑन एन एवरेज जो एंट्री का एज है बच्चों का वो 5 इयर्स से लेके दे कम एज अर्ली एज 5 इयर्स एंड एज लेट एज 15 इयर्स, और जनरली 16 इयर्स तक की एज तक बच्चे इनके स्कूल में रहते हैं। एंड इन्होंने बच्चों को ग्रुप्स में बांटा हुआ है 3 एज पर देयर एज। 5 to 7 years, they are juniors, they are younger ones. Then 8 to 10 years are intermediates, and the older ones are 11 to 15 years of age. And very interesting it will be for our friends to know कि स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। At the peak it was 45 at the peak it was peak 75 but reduced to 75 45 के आसपास, है ना। जी। और टाइम टेबल जो था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। टाइम टेबल टीचर्स के लिए होता था, टीचर्स बच्चों के के लिए लिए है, नहीं, है ना। बच्चों के लिए नहीं है। Right.
कि मैथ की क्लास होगी तो टीचर होंगे, लेकिन बच्चों के लिए जरूरी नहीं था कि वहां हो। तो बिल्कुल कई बच्चे महीनों नहीं आते थे, कई 6 महीने नहीं आते थे, राइट? बिल्कुल सो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, या really interesting and this AS Neil had taught at other schools also हम्म तो वहां पे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो भी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस थी, हम्म उसको समझते हुए, चाइल्ड साइकोलॉजी को उन्होंने समझते हुए फिर डिसाइड किया टू एस्टैब्लिश हिज ओन स्कूल ऑन हिज ओन आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी बच्चों के लिए कि हम्म किस तरह के आइडियल्स एक्चुअली होने चाहिए, हम्म वो उसकी बेसिस पर उन्होंने समर हिल हम्म को एस्टैब्लिश किया। And हम्म there is a paragraph, small paragraph, 2-3 lines. I हम्म, would like to quote from the जी introduction. It's from the first one only. जी जी। This began as an experimental school, हम्म but it is Summerhill began as an experimental school. It is no longer such. ओके। It is now a demonstration school. हम्म For it demonstrates that freedom works. मतलब हम्म उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, चलो करके देखते हैं कि हो सकता है फ्रीडम से कुछ चेंज आए एजुकेशन सिस्टम में। हम्म So he established it as an experiment, as a just for experimental purposes, but then it really got good results. थोड़ा टाइम लगा, but उसके बाद वो demonstration, it is now has become exemplary. हम्म कि हाँ, अब डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फ्रीडम जो बच्चों को दी जाती है वो हम्म एक्चुअली वर्क करती है। ओके। Means the children are free to हम्म attend lessons or हम्म not. It's up to them only. It's हम्म up to them हम्म whether they want to attend lessons or not. कुछ बच्चे हाँ, ऐसे भी होते हैं जो इस सेंस आते में ही नहीं है उन्होंने कभी। इस सेंस में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि उनके यहाँ जो बच्चे कुछ अच्छा कर पा रहे थे, तो चूंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जी, थेरेपी का सेशन भी करते थे काफी। तो बट ही राइट्स कि, प्राइवेट हाँ, तो वो लिखते हैं कि इट्स नॉट थेरेपी दैट क्योर्स, इट्स फ्रीडम दैट क्योर्स। फ्रीडम दैट क्यूर्स, यस। हाँ, दैट आई फाउंड सो अमेजिंग कि थेरेपी से नहीं बच्चे ठीक हो रहे हैं, उस फ्रीडम से हो रहे हैं, है ना? फ्रीडम से हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को पता है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं कर रहा हम्म है, मुझे बाउंड्रीज नहीं है। मैं हम्म चाहता हूँ जाना तो ठीक है, नहीं चाहता हूँ जाना तब भी हम्म ठीक है। उनको हम्म फोर्स नहीं किया जाता है लेसन्स करने में। तो फिर हम्म उसमें ये क्वेश्चन आता है कि एंड ऑफ द हम्म career, end of हम्म this school, they हम्म may end up as unsuccessful individual, but that has not happened. Why? हम्म Because when they did not were not interested to attend lessons, they were busy हम्म with tools, with हम्म some handiwork, जो भी हम्म उनका टैलेंट है, जो भी उनकी स्किल्स हैं, वो हम्म बच्चे उसमें बिजी थे। सो फर्स्ट हम्म दे गॉट they हम्म practice their skills and talent to the हम्म fullest, हम्म and when they outgrow it, हम्म they came back। और आगे जाके उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी, हम्म टूल्स से वर्क, हैंडी वर्क, हम्म उसकी बेसिस पे दे स्टार्टेड वर्किंग। और फिर उन्हें लगता है कि मुझे मेडिकल के लिए बैठना चाहिए। दे हम्म सैट एंड स्टडीड फॉर द एग्जाम्स एंड some of them, हम्म most of them cleared the exams as well. हम्म तो सो सब्जेक्ट जो करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं सब्जेक्ट था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म पहले बच्चे की लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, देन ट्रू। एवरीथिंग कम्स सो स्मूथली। जो आपने बताया उसके हिसाब से स्कूल लुक्स लाइक कि एक बड़ा ओपन सा एरिया है, एंड वहाँ पे फार्म लैंड है, और कोशिश की जाती है कि बच्चों का खाना वाना वहीं उगा लिया जाए। नील खुद भी खूब काम करते हैं गार्डनिंग में, मतलब गार्डनिंग इन द यस, सेंस वो सिर्फ फूल पौधों के लिए पोटैटोज, नहीं है। हाँ, मतलब हाँ सब्जियां उगाई जाती है। हाँ जी, एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं, थिएटर्स के वर्कशॉप्स होते हैं, है ना? और यस, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चे ही चलाते हैं एक तरीके से। बच्चों की काउंसिल है और वही डिसाइड करते हैं, मतलब सेल्फ रूल, ये बार बार आता है, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मुझे लगता है गवर्नमेंट, इस किताब की जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है सेल्फ रेगुलेशन, है ना? सेल्फ तो रेगुलेशन। अगर किसी के मन में ये आता है कि अगर इतना फ्रीडम दे दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, है ना? तो एक ये पूरी कहानी मुझे लगता रहता है कि फ्रीडम वर्सेस सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन की कहानी है। एंड ओनली, आई मीन, द पीपल हु रीड्स इट दे कैन अंडरस्टैंड। हम एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, जिसने ये देखा है। जी, तो चूंकि वो जो प्रिंसिपल है वो इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ही सॉ इट कि एट मोस्ट प्लेसेस इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस बच्चों ने सेल्फ रेगुलेशन के जरिए
उन डरों को, उन फियर्स को जो उन बच्चों के माँ बाप के अंदर भी था कि इतना फ्रीडम मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये कुछ गलत तो नहीं करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट किया एंड बहुत इंटरेस्टिंगली, चूंकि सेल्फ रेगुलेशन था और फ्रीडम भी था, तो उसकी कुछ कीमत भी होती थी। जैसे बच्चे तोड़फोड़ बहुत मचाते थे, है ना, खूब खिड़कियां तोड़ते थे, टूल्स चुरा लेते थे, पेड़ पौधों को तोड़ते थे, काटते थे, तो वो सब चीजें भी थी। तो इस तरीके से हम इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एक बड़ा सा स्पेस है, डॉर्मेट्रीज बने हुए हैं लड़के लड़कियों के रहने के लिए, रेसिडेंशियल स्कूल है, क्लासेस लगते हैं, टाइम टेबल भी इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ अ डे लुक्स लाइक, राइट, कि 9 या 10 बजे से शुरू होता है, इवनिंग में 2 घंटा 3 घंटा पूरा फ्री छोड़ दिया जाता है आफ्टर लंच के बाद, और 5 बजे के बाद से फिर से क्लासेस जैसा नहीं होता है। उस वक्त जिसका जो इंटरेस्ट है, कोई वर्कशॉप्स में जा सकता है, कोई गार्डनिंग के लिए जा सकता है, कोई म्यूजिक का कुछ प्रैक्टिस कर सकता है, और कोई चाहे तो अपने घर में मतलब रह सकता है। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था कि वो जाए, कोई ऐसा हॉस्टल वार्डन टाइप का नहीं था कि वो जाकर के उसको खींच के लाए कि यहाँ आ जाओ। So this is how overall the school looks like, है ना? यस सर, Yeah. एग्जैक्टली। और इसमें इनका बहुत हम्म। फ्लेक्सिबल और बहुत इजी इन्होंने टाइम सेट किया हुआ है। जो हाँ बच्चे हाँ बाहर से डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाँ, they have a kind of, they have repressed personalities, they right, want to rebel, वो रिवोल्ट rebel. करना चाहते हैं और वो हम्म, करते भी हैं। they don't want to, you know, fall in with the system, they want the system to adjust to their needs। वो very ये चाहते interesting. हैं, हाँ बच्चे हाँ, ये चाहते हैं। right, right. इसलिए पब्लिक स्कूल से अगर कोई बच्चा अटेंड करके कुछ साल या कुछ टाइम आता है, तो हाँ, थोड़े टाइम ही प्लेज ट्रूएंट हियर इन right. समर हिल। वो एकदम ही ब्रैट की तरह से बिहेव करते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम they हम्म get tired and then they fall in with हम्म the system हम्म that Neil has set, which is हम्म quite flexible and friendly for the children and हम्म, friendly for the learning environment। right, right, right. Yeah, तो one, yeah, हाँ हाँ, please, कहिए please कहिए। carry on. Yeah, तो I mean, what we can like see here कि इतने छोटे से बच्चे में ट्रस्ट करना, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म कि जो बच्चा है, दे आर ए कॉन्शियस बीइंग, दे थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड दे कैन मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल। और वहीं से मुझे लगता है कि इन्होंने वो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है ना, कि बच्चे ही डिसाइड करेंगे। और कई बार ये स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसके बावजूद इनके प्रपोजल्स को जो है बिल्कुल। बच्चे रूल आउट कर देते थे कि नहीं, आपकी इस बात को नहीं माना जाएगा, राइट। वीकली, यस सर, वीकली इनका एक शेड्यूल है कि मंडे ये होना है, ट्यूसडे ये हाँ होना है, सैटरडे हाँ, इज देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। हम्म व्हाई? बिकॉज दे हैव द जनरल मीटिंग, और हम्म, उसके अंदर एक चेयरमैन अपॉइंट हाँ किया जाता है जो हाँ, स्टूडेंट ही होता है। और राइट, अगली मीटिंग के लिए, बिफोर दिस मीटिंग कंक्लूड्स, दे हम्म डिसाइड अनदर चेयरमैन फॉर द अपकमिंग मीटिंग। तो हम्म उसमें डिसीजन हम्म बच्चे लेते हैं, हम्म डेमोक्रेसी है पूरी उसके अंदर। हम्म। उसमें किसी का भी, टीचर का भी, हेडमास्टर का भी, किसी का व्यू बाय वोट डिसाइड होता है कि वो ठीक है या नहीं। और यहाँ उसमें ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल सर, पढ़िए। ये जिस पे हम थैंक बातचीत कर रहे थे, ये एग्जाम्पल देते हैं कि आई वंस रेज द क्वेश्चन यस। ऑफ वेदर फुटबॉल शुड बी प्लेड इन लॉन्स। मतलब उस मीटिंग में ये एक प्रपोजल रखते हैं कि लॉन्स बिल्कुल। में फुटबॉल खेला होना चाहिए या नहीं। द लॉन्स इज अंडर माय ऑफिस and I explained that I disliked the noise of football while I was working. I proposed that indoor football be forbidden. I was supported by some of the girls, by some older boys, and by most of the staff, but my proposal was not carried, and that meant my continuing to put up with the नॉइज। noisy scenes of feet below my office. Finally, after much public disputation at several meetings, I did carry by majority approval the abolition of football in the long, and this is the way the minority generally gets its rights in our school democracy. It keeps यस। demanding them. This applies to little children as much as it does to adults. कि पहले एक आध मीटिंग में वो काम चल नहीं पाया, उनका जो प्रपोजल आता था बार बार कि यहाँ फुटबॉल मत खेलो, मुझे डिस्टर्ब होता है काफी, बच्चे उसको मान नहीं रहे थे।
लेकिन वो बार बार ये डिमांड करते रहे, तो बाद में धीरे जा करके जब ज्यादा बच्चों का वोट इनके फेवर में आया, तब जा करके ये प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हुआ। और यहाँ ये देते हैं कि इस तरीके से माइनॉरिटी वॉइस को भी एक डेमोक्रेसी में जगह मिलता है, मिलता जब है। वो अपने डिमांड को लेकर के परसिस्टेंट रहता है, वो बार बार अपने डिमांड को रखता रहता है और ज्यादा लोग उसके समर्थन में आते रहते हैं। तो दिस इज हाउ आई मीन, एक तरीके से जो जो फील है इस स्कूल का, दैट हाउ इट अपीयर्स, हाउ इट लुक्स लाइक, है ना, वो जी। हमारे सामने आता है। जी जी, आपने इसमें एक और कुछ? हाँ हाँ। ये भी बोलते हैं कि समर हिल इज पॉसिबली द हैप्पीएस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है राइट। कि वो उनका स्कूल है, हम्म इसलिए वो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है बुक के, दैट हम्म आई विल try to showcase the negatives as well, हम्म and he has literally tried that. But हम्म after experiencing and after analyzing the situation over हम्म the years of almost 40 years of running the school, he हम्म says Summerhill is possibly the happiest school in the world. हम्म We have no truants and seldom a case of homesickness. राइट ट्रुएंसी राइट। है ही नहीं, बिकॉज बच्चों को बाउंड नहीं किया जाता है। हम्म they are self-regulated, they are self-disciplined, nobody is there to हम्म discipline them. But at the same time, Neil says there is parents fail to understand the distinction and difference हम्म between हम्म freedom and हम्म license. हम्म Freedom does not mean spoiling the children, हम्म right? He says young children are in the dormitory and we don't have unbarred windows. Of course, we हम्म are following safety norms. हम्म Just because we are giving freedom to the children does not mean we'll let them jump out of the windows. राइट राइट। So practically also they follow the हम्म real life हम्म example and uh, try to act sane. हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि थियोरी विदाउट कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस विदाउट थ्योरी बोथ आर फेटाइल, फ्यूटाइल, Both मतलब are दोनों की futile. उपयोगिता नहीं है, राइट। कि थियोरी अगर है फ्रीडम की, लेकिन वहाँ कॉमन सेंस भी काम आना चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि अगर 102 डिग्री किसी बच्चे का बुखार आ रहा है, तो हम उससे नहीं पूछेंगे कि तुम बाहर जाना चाहते हो या तुम क्या खाना चाहते हो, उस वक्त उस जो टाइम में जरूरी है हम उससे वो जोक करें, नहीं करूंगा। राइट। Yes, हाँ, yes. मतलब हमें जो जरूरी लगेगा हम वो करेंगे, उस वक्त हम फ्रीडम की थियोरी पे काम नहीं करेंगे कि हम इससे कंसेंट लेते हैं, राइट। या एक बार बार वो एग्जांपल देते हैं कि जिस एज में बच्चा है और उस एज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाल सकता है, हम वही दे सकते हैं। वहां पे हम इसमें नहीं जाएंगे कि नहीं तुम्हारा टोटल फ्रीडम है, तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। सो बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से इन चीजों को उन्होंने लाया है कि और एक जगह और बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब यहाँ पे उनसे है कि जहाँ पे उसका जो कंसिक्वेंस है उस फ्रीडम का, दैट इज लिमिटेड टू दैट चाइल्ड ओनली। अगर उस फ्रीडम के में जो भी एक्ट होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस बाकी लोगों पे भी पड़ता है, तो दूसरों देन के फ्रीडम, दैट फ्रीडम इज लिमिटेड। दैट इज ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसकी प्रैक्टिस को यहाँ भी लाते हैं, है ना। मतलब आपकी फ्रीडम सिर्फ हम्म आपको ही इफेक्ट करे. You राइट। should not be violating the other people's freedom around you, हाँ right? हाँ। You must not be, just because you want to play music, you cannot play music during a history class because हम्म it's going to disturb the history class. It's हम्म। violating the rights of others who are attending the class. हाँ। So you are trespassing into their territory, into, you are violating their freedom, their right to freedom. So राइट। as long as it does not have a negative impact on the other people's freedom, it is fine. You can enjoy your freedom. This is what हम्म they teach. हम्म। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स इस तरीके की स्कूल में जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्व था, तो दैट इंक्लूड्स प्ले, दैट इंक्लूड्स डांस एंड म्यूजिक, दैट इंक्लूड्स Theater. थिएटर, हाँ, जहाँ बच्चे खुद लिखते थे और थिएटर में पार्टिसिपेट करते थे। तो आई थिंक दिस इज हाउ द फर्स्ट सेक्शन, है ना, को First हम section goes like this. Yes. गोज लाइक दिस जहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, Yeah. क्योंकि एक बहुत बड़ा ये है, मतलब चाप मतलब किताब है, तो हम सभी सभी चीजों को नहीं टच कर सकते नहीं हैं touch कर. इस छोटे से उसमें। बट या आई मीन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ।
Yes, sir. Next section is child rearing, I guess. हम्म So for child rearing, हाँ he has a lot of ideas which are not bookish at all. They are very practical. हम्म बहुत practical और बहुत realistic उनके thoughts हैं, हम्म जो because he's running a school, उन्होंने सिर्फ pedagogy, सिर्फ theory, सिर्फ psychology के lectures नहीं दिए हैं. उन्होंने बच्चे को सेंटर में रख के एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने रियल लाइफ में फील किया है, अपनी डॉटर के एग्जांपल्स भी दिए हैं उन्होंने. एंड ही हैज डिस्कस्ड कि हम बच्चों को कैसे रियर करते हैं, हाउ वी आर रियरिंग देम. दे आर innocent children, right? We lie to them. How do they learn lying? Because parents lie to the children. छोटे छोटे हम झूठ बोलते ही हैं बच्चों से. We tell them your father is so brave, he can, you know, run on a horse and he can act like an armor shining, a knight in shining armor. And when it actually comes, when the child asks his father to behave like that, father is not able to do so. Then the child realizes, my parent has lied to me. Though we say it jokingly, it gives him the impression that yes, my parent has lied to me. तो पेरेंट्स जो आते हैं कि बच्चा मेरा झूठ बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि उसने देखा है, वो सीख के नहीं आया है. He has not been a liar since birth. Yeah. He has learned to lie. Yes. Yeah, even introductory line जो है, the unfree child का, जो child rearing वाले सेक्शन में जो पहला इनका सब टॉपिक है, वो कितना खूबसूरत है कि the molded, conditioned, disciplined, repressed child, the unfree child. मतलब इस सब को मिलाकर के ये कहते हैं the molded, conditioned, disciplined, repressed child, the unfree child, whose name is Listen, lives in every corner of the world. Every corner of the world. He lives in our own just across the street. He sits at a dull desk in a dull school, and later he sits at a duller desk in an office or on a factory bench. He is docile, prone to obey authority, fearful of criticism, and almost fanatical in his desire to be normal, conventional, and correct. He accepts what he has been taught almost without question, and he hands down all his complexes and fears and frustrations to his children. और जो इस तरीके का एक बच्चा बन गया, वो ये सभी चीजें फिर से अपने बच्चों में पास ऑन कर देता है. अगला लाइन मुझे साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में बताता है, मतलब कितना पावरफुल है ये और हमें कितनी कम समझ है इसके बारे में, कि साइकोलॉजिस्ट हैव कंटेंडेड that most of the psychic damage to a child is done in the first 5 years of life. It is possibly nearer the truth to say that in the first 5 months, or in the first 5 weeks, or perhaps even in the first 5 minutes, damage can be done to a child that will last a lifetime. मतलब ऐसे जो damage जो lifetime तक मतलब रहता है. True. And yeah. तो ये तो मतलब the unfree child कौन है? तो I think most of us जो molded है, conditioned है, disciplined है, repressed है, वो सब unfree है ना? Yes. Yeah. Exactly. It's ironically this, because we feel that we have conditioned our child. My parents felt I've conditioned my daughter. Yeah. So because the standards of the society, the standards of judgment of success is money, is the material things. As per those standards, yes, we are conditioned children. Right. But sadly, we are not free children. We are not free at all. And which leads to us being developed as problem children. My child is a problem child. So for that, he says, like you also pointed out, Murari sir, there is never a problem child. There are only problem parents. Perhaps it would be better to say that there is only problem humanity. Yeah. Whole society, humanity is the problem, not the child. Yeah, that's a very powerful line. Yeah. Yes. और इसमें ये पूरा इस वाले सेक्शन में कि आप पूरे समाज को देखेंगे कि वो ये वर्ड यूज करते हैं कि लाइफ डिसअप्रूविंग एटमॉस्फेयर में, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बार बार एंटी लाइफ. या दैट्स द वर्ड ही इज यूजिंग, राइट?
And then Yes. I mean, लिखा इतना powerfully है ना. Again, I would like to read. The Yes, sir, tragedy please. of man is that, like the dog, ये देखिए कितना अच्छा example है. The tragedy of man is that, like मैंने the dog, his character can be molded. Like the dog, जैसे कुत्तों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसी बिल्कुल तरीके से लोगों को भी. You cannot mold the character of a cat, an animal superior to the dog. ये मुझे पहले से नहीं पता था, यहीं पढ़ के पता चल रहा है. You can give a dog conscience. a bad conscience, but you cannot give a conscience to a cat. Right? Yet most people prefer dogs because their obedience and their flattering tail wagging afford visible proof of the master's superiority and worth. और इसी वजह से ज्यादातर लोग कुत्तों को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुत्तों को दिया जा सकता है कंसाइंस, बट यू कैनॉट गिव अ कंसाइंस टू अ कैट. और फिर कंपेयर करते हैं कि द नर्सरी ट्रेनिंग इज वेरी लाइक द नेल ट्रेनिंग. The whipped child, like the whipped puppy, grows into an obedient, inferior adult. And as we train our dogs to suit our own purposes, so we train our children. In that nail, the nursery, the human dogs must be clean. They must not bark too much. They must obey the whistle. They must feed when we think it convenient for them to feed. तो एकदम रेडिकल अप्रोच है ना, मतलब चीजों को बिना झिझक का वो एक बिल्कुल. तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को. चंदन जी, आई थिंक आप काफी, मुझे पता नहीं था जब मैं ये एग्जांपल पढ़ रहा था कि ऐसा सही में है क्या कि जो कैट है उसको ट्रेन नहीं किया जा सकता है और डॉग को किया जा सकता है. It says a cat is its own master actually. Oh, He or she will do what pleases itself. okay. So the cat owners are called the most tolerant person on this earth because they tolerate all the tantrums thrown away by that creature. ओके, तो वो ये लिख रहे हैं कि वो एक सुपीरियर एनिमल है डॉग के कंपैरिजन में, राइट? रुपिंदर जी भी कुछ लिख रहे थे. आई थिंक ही हैज आल्सो द एक्सपीरियंस. वो कह रहे हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन तो दिया जा सकता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन माने ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो नहीं भी मान सकती है ना. वेरी इंटरेस्टिंग. और क्या पावरफुल एग्जांपल नील लेकर के आए हैं यहाँ पे. जी नवीला जी. Yes, sir. This nursery training is compared to kennel training. हाँ हाँ, Means you train children like puppies, राइट. right? But actually, what happens is children learn like adults, like what they want to learn. So if you try to cut it short, then it's going to lead to unfree. Right. आई थिंक इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया. आपने नहीं नहीं आप बता तो रही थी या? No, sir. Am I audible? Yes, yes, yes. Quite audible. Okay. Yeah. So this repression, suppression of individuality leads to development of unfree children. राइट राइट. और वो अनफ्री चिल्ड्रन कैसा होगा, वो फ्री चाइल्ड कैसा होगा? तो ये कहते हैं कि देयर आर सो फ्यू सेल्फ रेगुलेटेड बेबीज इन द वर्ल्ड that any attempt to describe them must be tentative. मतलब बहुत ठीक ठाक एग्जाम्पल है नहीं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि है ही नहीं. The observed results so far suggest that beginning of a new civilization more profoundly changed in character than any new society promised by any kind of political party. Self-regulation implies a belief in the goodness of human nature, a belief that there is not and never was original sin. इस पे तो इन्होंने बहुत लिखा हुआ है. और चर्च वगैरह को या किसी भी धर्म को जो ये बताता है कि इंसान पाप से भरा हुआ है, उसका शरीर और पूरा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो उस पाप से मुक्ति के लिए है, एक तरीके से पूरे किताब में उसको मतलब काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, है ना. और इस तमाम मान्यताओं से जो फ्री है, ये एक तो कहते हैं कि पता नहीं कि कहाँ है, टेंटेटिव है ना. एक नया सिविलाइजेशन होगा जहाँ पे एक नया धर्म होगा. और उदाहरण भी देते हैं ये नया धर्म के मामले में कि एंड ही सेज कि लाइक लाइक ह्यूमन परहैप्स, या किसी भी चीज की तरह धर्म की भी शुरुआत होती है, युवावस्था होता है और धर्म मरता भी है. इससे वो इजिप्ट के किसी रिलीजन का एग्जांपल देते हैं कि एक टाइम पे उसको मानने वाले बहुत सारे लोग थे. आज नो वन नोज दैट वो रिलीजन भी कभी एग्जिस्ट करता था. सो ही अज्यूम्स कि ऐसे ही शायद एक नया रिलीजन होगा. वो नया रिलीजन ह्यूमन के फ्रीडम्स में, उसके इंट्रिंसिक गुड में बिलीव करेगा
और sin की जो आइडियाज है उससे अपने आप को अलग करेगा, isn't? Yes, sir. Because we are trained that हाँ God is cruel, हाँ है ना? तो हाँ हाँ body is sinful. So हाँ, एक loving God तो सिखाया ही नहीं जाता है. right right, इसलिए नील ने कोई religious ideology, he says I don't follow any religion, but I हाँ, don't oppose any religion either. right But right, his school is an island. हम्म लोग कहते हैं कि it is an island. He says it is supposed to be an island. Why? हम्म Because we are different from the general public schools. हम्म We don't teach religion. We don't teach all those bound margins to the हम्म students. We हम्म let them, we teach them, we train them on the standards of freedom, self-regulation, self-governance, self-discipline. That is हम्म why it is an island, and हम्म he never imposes. The हम्म curriculum does not have any religious ideology. It is हम्म naturally the childhood, the human psychology that he has studied हम्म and has tried to genuinely make changes and adopt them to his हम्म new system. हम्म That is his attempt, which has now, flourished, and that which has resulted in Summerhill being the happiest school हम्म in the world. या और इसको डिफाइन भी इन्होंने किया है बहुत खूबसूरत तरीका से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, वी आर लाइक नेवर नियर कि इनके जैसे शब्दों में हम किसी चीज को एक्सप्लेन भी कर सकें। तो हमारी कोशिश इसलिए रह रही है बार बार कि ये जैसे कह रहे हैं वैसे ही हम शेयर करें पढ़ के, मतलब जॉय ऑफ रीडिंग को, है ना। सेल्फ रेगुलेशन को डिफाइन करते हुए लिखते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन मीन्स the right of a baby to live freely without outside authority in things psychic and somatic. It means that the baby feeds when it is hungry, that it becomes clean in habits only when it wants to, that it is never stormed at nor spanked, that it is always loved and protected. तो बहुत ही अगेन रेडिकल तरीका से इन्होंने इसको डिफाइन किया है कि वो तब खाना खाएगा जब उसे भूख लगेगा, नहीं तब नहीं जबकि टाइम टेबल बता रहा है, राइट। हैबिट क्लीन रहने का हैबिट उसे वो तब अडॉप्ट करेगा जब उसे उसकी जरूरत लगेगी। और इन तमाम प्रयोगों के बीच भी उससे प्यार किया जाएगा और उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो लोग उसके आसपास रहेंगे उसके जरिए, है ना। इस तरीके से इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन को मतलब एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। और यहीं पर इस किताब में ही एक हाँ उदाहरण साझा किया गया है, जिसमें हाँ कहा जाता है कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसका हाथ बांध दो, उस पे कुछ हाँ तीखा कड़वा लगा दो कि वो मतलब उसको हाँ, सजा के तौर पे ले। राइट तो राइट। ये चीजें पता नहीं कि मतलब कितने लोगों ने इसको पढ़कर ऐसा करना बंद किया, हम्म या अनायास ही जो उनके मन में अनुशासन का या हम्म समय के पालन को लेकर भी जो एक रूढ़िबद्धता है कि नहीं हम्म ये इसी समय पर होना चाहिए, हम्म तो वो रादर की बच्चा हम्म डोसाइल हो जाए, चीजों को मानने लगे, वो हम्म रिवोल्ट करना ज्यादा शुरू कर देता है। हम्म और जैसा कि नील ने कहा है कि बच्चे हम्म को जब जरूरत महसूस होगी वो हम्म वैसी आदतें स्वयं पालन करने लगेगा, लेकिन हम्म उसके लिए बेहद जरूरी है कि उन आदतों को पालन करने से क्या क्या चीजें हो रही हैं हम्म, उसका उदाहरण उसके सामने जरूर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड हम एक चीज और भी यहाँ लाना चाहते हैं कि ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो नील ने किया है समर हिल स्कूल में। इसकी कई सारी चीजें हमें अपील करती है, बट ऐसा नहीं है कि इसके काउंटर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं है, या डिसिप्लिन के महत्व को बहुत सारी किताबों में नहीं बताया गया है। गांधी की बायोग्राफी पढ़ते हुए आपको लगेगा कि जीवन तो कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब सारा वर्च्यू तो डिसिप्लिन में है जब उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सो this is one perspective that we are bringing, and this is the beauty of uh, the body of knowledge that human produces, that none of the theories are the total perfection. इसीलिए हमेशा नए theories, नए ideas आते रहते हैं। तो we are bringing how Neil has observed in that experiment with 45 children at Summerhill। उनकी जो अनुभव है वो उन्होंने लिखा है और बहुत ही रेडिकल अंदाज में लिखा है, डिसमिसिव अंदाज में लिखा है,
ये नहीं कि ये भी और ये भी, मतलब एकदम डिसमिस करते हैं बाकी चीजों को, राइट Yes, नबीला sir. जी? There is another point या that I really liked. I would like to read. हम्म I believe that to impose anything by authority is हम्म wrong. हम्म The child should not do anything until हम्म he comes to the opinion, हम्म his own opinion, that it हम्म should be done. हम्म The curse of humanity is the external compulsion, whether it हम्म comes from the Pope or हम्म the state or the teacher हम्म or the parent. And he says it is fascism only. हम्म Because at that time, these things were going on in the European society. He has given examples of that, हम्म fascism. But वो ये बोल रहा है कि बच्चा जो है, हम्म बाहर से हम कुछ भी अथॉरिटी उसको इम्पोज करें कि तुम्हें ऐसा करना है, हम्म ये नहीं करना है, दाउ शैल्ट नॉट, वो हम्म नहीं करना है। हम्म बच्चा जब तक खुद एक अपना ओपिनियन, एक आइडिया एक्सेप्ट ना कर ले कि मुझे ये करना है और क्यों करना है, हम्म किसी के कहने से नहीं, खुद से, खुद से। तब उसको वो करना चाहिए। देन इन दैट सेंस हम्म वी कैन से ही इज अ फ्री चाइल्ड। और फ्री यही इनकी आइडियोलॉजी है जिसपे इन्होंने काम किया है। राइट। और उस फ्री चाइल्ड के सेंटर में जो आइडिया है इनका लव का, जिसपे भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है, और ये लिखते हैं कि बच्चों के संदर्भ में अप्रूवल इज लव एंड डिसअप्रूवल इज हेट। कि बच्चा जो भी यस, कर रहा है, इफ यू आर अप्रूविंग, सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव टू द चाइल्ड। डिसअप्रूव कर रहे हैं तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हेट टू द चाइल्ड। हेट। दिस इज हाउ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स द आइडिया ऑफ लव एंड हेट, राइट? एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। फिर सवाल आता है कि भाई बच्चा तो बहुत कुछ करता रहता है, कैसे हम हर चीज को अप्रूव कर रहे हैं? एंड हियर ही क्वेश्चन द पर्सन, द टीचर्स एंड द पेरेंट्स कि आप कौन होते हैं, अप्रूव कब कर सकते हैं? तो दैट आई फाउंड लाइक साइकोलॉजिकली वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो देखिए क्या लिखते हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेज, is it possible to approve of children if you do not approve of yourself? If you are not aware of yourself, you cannot approve of yourself. वो कहते हैं कि अगर आप अपने बारे में अवेयर नहीं है, अगर आप अपने आप को अप्रूव नहीं करते हैं, in other words, the more conscious you are of yourself and your motives, the more likely you are to be an approver of yourself. तो ही saying कि वही व्यक्ति एक्चुअल सेंस में बच्चे को अप्रूव कर सकता है, उसके किसी भी एक्ट को, जो अपने आप को भी अप्रूव करता रहता है, जो अपने पर्सनैलिटी को लेकर के, अपने आइडेंटिटी को लेकर के श्योर नहीं है, वो दूसरों को अप्रूव नहीं कर सकता है। एंड ही फर्दर राइट्स कि I express the earnest hope then that more knowledge of oneself and of child nature will help parents to keep their children free from neurosis. I repeat that parents are spoiling their children's lives by forcing on them outdated beliefs, outdated manners, and outdated morals. They are sacrificing the child to the past. This is especially true of those parents who impose authoritative religion on their children just as it was once imposed on them. तो मतलब इनके लैंग्वेज में देखिए ना कितना कन्विंसिंग तरीके से ये अपनी बात को रख रहे हैं। तो दैट आई फाउंड कि मतलब अप्रूवल इज लव, disapproval is hate. This is how children construct the knowledge Yes, of sir. love. Yeah, I would like to add in this a yeah, bit. yeah. The happiness and well-being of children depend on the degree of love and approval we give them. जितना लव और अप्रूवल हम उन्हें देंगे, उस पे उनकी हैप्पीनेस और वेलबींग डिपेंड करता है। We must be on child's side. Being on the side of the child is giving Very love to the child, not possessive love, not sentimental love, just behaving to the child in such a way that the child feels you love him and approve of him. बस इतना सा सिंपली करना है। कोई उसमें सेंटिमेंटल होने की, कोई ओवर इमोशनल पोजेसिव होने का, वो वाला लव एक्सप्रेस नहीं करना है। बस इतना लव बच्चे को लगे that I feel he feels loved and he is approved of. This is ये दो की वर्ड है जो आपने बहुत इंटरेस्टिंगली लाया कि बीइंग इन द साइड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के साथ खड़ा हो, है ना? आई थिंक दैट इज परहैप्स द बिगेस्ट एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ अप्रूवल एंड दैट इज द बिगेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गो इनटू इट। फियर्स के बारे में कितना शानदार
कि कुछ फियर तो रियल होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सांप से डरना रियल होगा, लेकिन स्पाइडर से डरना इज एक्वायर्ड फियर एक्चुअली, जिसका जिसका रियल में कोई वजूद नहीं है, राइट। और उसका साइकोलॉजी के लेवल पे वो एनालिसिस करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट भी है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर स्पाइडर से डर रहा है तो वो सांप से डरने जैसा ही है, क्योंकि वहां पे अगर स्पाइडर काट लेता है तो वो मरने, मतलब लोग मर भी सकते हैं, वो पॉइजनस होता है। Yes, yes. तो कई तरह के ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल लाते हैं और उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। इन्फीरियोरिटी एंड फैंटेसी के बारे में काफी सारी बातचीत करते हैं कि कैसे ये डेवलप होता है और कैसे इसको ब्रेक किया जा सकता है। सिंस हमारे पास टाइम कम है नवीला जी, तो व्हाट विल ट्राई टू डू कि जो लास्ट सेक्शन है, जो क्वेश्चन एंड जी आंसर वाला सर, उसमें जो सेक्शन है, एक दो क्वेश्चंस हैं, हाँ, हाँ, that तो वहां should पे be. हम लोग आते हैं, वो हम सबके इंटरेस्ट का है। उसमें से आप कुछ सवाल जो आपको लगता है कि हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सवालों को थोड़ा सा आप मतलब लीजिए, राइट। एंड बिफोर I, दैट yes sir. आई मीन आई वुड लाइक, जब तक आप उसको ढूंढ के निकालती हैं, आई वुड लाइक टू लाइक शेयर कि उन तमाम पॉइंट्स पे, चाहे वो बच्चों की झूठ बोलने की आदत हो, चोरी करने की आदत हो, तोड़ने फोड़ने की आदत हो, इन तमाम बातों पे बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल एनालिसिस इस किताब में किया गया है, विथ रियल एग्जांपल्स को लेकर के। जैसे लाइंग पे हम लोगों ने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में कहा था कि ही डायरेक्टली कनेक्ट्स इट टू द पेरेंट्स की, मतलब जो बच्चों में झूठ बोलने की आदत होती है वो जनरली पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, कि पेरेंट्स झूठ बोलते हैं। और ये कहते हैं कि पहला झूठ बच्चों को यही बताया जाता है कि जब बच्चे पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो जो तरह तरह की कहानी बताई जाती है, तो चिल्ड्रन फिगर आउट कि यहीं से झूठ की कहानी शुरुआत होती है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स। या आप उस सेक्शन पे आ गए हैं, आई थिंक आपने कुछ क्वेश्चन आंसर आइडेंटिफाई किया है जो आप शेयर करना चाहेंगी नवीला जी? Yes sir, two questions I have pointed out and you can also या see if या you have some. एक क्वेश्चन इसमें है, do you know honest do you honestly think it is right to allow a boy naturally lazy to go his own easy way, doing as he chooses, wasting time? How do you set him to work when work is distasteful to him? बच्चा नेचुरली लेजी है, अपना टाइम खराब कर रहा है, और आप उसको अलाउ करे जा रहे हैं, उसको फिर वो काम करना पसंद नहीं करता है, तो आप उसको कैसे ये अलाउ करना, उसको फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, इज इट करेक्ट? सो द आंसर दैट नील हैज गिवन is laziness does not exist. There is nothing like laziness. The lazy boy is either physically ill or he has no interest in the things that adults think he ought to do. Lazy कुछ नहीं होता है, या तो बच्चा हेल्थ वाइज ठीक नहीं है फिजिकली, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है जो आप उसको करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वो नहीं विलिंग है करना नहीं चाहता है. That is why you think he is lazy. I have never seen a child who came to Summerhill before the age of 12 who was lazy. Many a lazy lad has been sent to Summerhill from a strict school. Such a boy remains lazy for quite a long time until he recovers from his education that he received from the strict school. So I do not set him to do work that is distasteful to him because he is not ready for it. Like you and me, he will have many things to do later that he will hate doing. But if he is left free to live through his play period now, if he is allowed to play right now, he will be able later on to face any difficulty. To my knowledge, no ex-Summerhillian has ever been accused of laziness. जो समर हिल्स में जिन्होंने भी पढ़ा, और जी, उनमें से किसी को भी लेजीनेस का कभी ब्लेम नहीं किया गया कि lazy. या मैं मानता हूँ कि जिन साथियों को टाइम नहीं रहता है, उन्हें इस किताब का कम से कम ये वाला सेक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, जहाँ पे ऐसे तमाम सवालों का वो जवाब देते हैं। क्यों नहीं एक दो सवाल आप और पढ़िए, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे सवाल इनसे पूछे गए हैं। Yes, sir. One more I have. What is your opinion of corporal punishment? जरूर पढ़िए इसको। Corporal punishment is evil because it is cruel and hateful.
It makes both the giver and the recipient hate. It is an unconscious sexual perversion. In communities where masturbation is suppressed, punishment is given accordingly, right? By hitting on hands, or segregation of, like, segregated school, boys schools have, like, they might be practicing homosexuality, getting involved. So that way corporal punishment makes them suffer, as they are hit and they are punished to clean this sin from them. So corporal punishment is always a projected act. The giver hates himself and projects his hate onto the child. So that's a mother- powerful psychological Yes. analysis. हाँ continue करिए इसको पूरा पढ़िए. The mother who spanks her child hates herself and in consequence hates her child. तो मतलब दोनों सफर करते हैं. जब कॉर्पोरल पनिशमेंट में दोनों सफर करते हैं. मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट जो रेसिपिएंट है, वो तो अपने आप को, आपका आप गिवर हैं, so आपके अंदर जो हेट है वो आप उसको ट्रांसफर करते हैं. एंड अगेन ही इज अ सब्जेक्ट टू हेट्रेड, which spoils his psyche. In case of a teacher with a large class, the use of the sap is not so much a matter of hate as one of convenience. It is the easy way, right? The best way to abolish it would be to abolish the large class. टीचर वहां हेट नहीं करता है कि मेरे पास 50 बच्चों की क्लास है, सो शी हेट्स देम. 50 बच्चे हैं तो प्रॉब्लम है. उसको पता है ये कन्वीनियंट है मेरे लिए, पहले ही मैं स्केल टेबल पर बैंक कर दूंगी, या एक बच्चे को मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, जबकि अब इतना शायद नहीं होता है, बट इट इज नॉट अलाउड. लेकिन ये जब भी उस टाइम पे जब ये बुक लिखी गई है, इट वाज quite widespread. Even in UK वहां पे भी बहुत मतलब बहुत caning used to be. यूरोप के बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में यूके में इसका बहुत प्रचलन था. London, if you read the books, Dickens and all, you will see कि caning बहुत कॉमन था, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर वो इस तरह से पनिशमेंट मिलती थी, सो पूरी क्लास अपने आप डिसिप्लिन हो जाती थी. हाँ, जैसे यहाँ पे दिस वाज कन्वीनियंस. we see. हाँ. Yeah. So if a school were a place for play with freedom to learn or not to learn, whipping would automatically die out. जैसे इनका स्कूल है फ्रीडम पे बेस्ड, जब इन्होंने खुद ही फ्रीडम दी हुई है कि आपको पढ़ना है, आप क्लास में आना चाहते हैं आप आइए, नहीं आना चाहते हैं, जब तक नहीं आना चाहते हैं मत आइए. तो फिर उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट की, विपिंग की, केनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. In a school in which the teachers know their jobs, corporal punishment is never resorted to. Right. So the ideology plays a great role. आपका ideology क्या है? Freedom को अगर आपने sideline कर दिया है, जो आपके उसमें है ही नहीं, आपकी philosophy में child freedom है ही नहीं, then you will not be able to raise students who are free. They will be unfree students, unfree children, unfree men later on. Very good. Yeah. So that और is इसके कई एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी हैं जो कह रहे हैं, आपने अभी बताया कि बच्चे का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो नहीं पढ़े. तो एक दो ऐसा एक्सट्रीम बच्चा हुआ कि 2-3 साल तक उसने पढ़ना ही नहीं सीखा, एंड देन सडनली वन डे ही फाउंड कि वो एक बच्चा पढ़ रहा है, एंड ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड कि कैसे आ गए. तो उसने कहा कि मैंने अपने आप को सिखाया है, आई हैव टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद पढ़ना ये सीखा है. myself. हाँ, Yes. क्योंकि मेरी दिलचस्पी, तो वो इस बात पे भी लाते हैं कि बच्चे की दिलचस्पी होगी तो वो सीख लेगा. एंड देन ही राइट्स कि literacy should not be placed higher to the joy or to happiness, Learning or to freedom. हाँ, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो लिटरेसी को सेकंड स्टेज पे रखते हैं. एंड देन ही गिव्स कपल ऑफ एग्जांपल, जो बच्चे बड़े होकर के यहाँ से निकले और वो एक नॉर्मल लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं. जो चीजें उन्हें सीखनी थी वहां पे वो सीख लेते हैं, क्योंकि तब उन्हें सीखने का मन करता है. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट स्टिल द सैंपल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज है 45 स्टूडेंट्स का, बट एन अमेजिंग साइकोलॉजी बुक. एंड आपने जो पढ़ा उसमें लास्ट वाला जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आई हैव लाइक मैंने इसको कहीं कोट भी किया था कि किस तरीके से ये टीचिंग को देखते हैं.
उसमें ये जो एग्जाम्पल देते हैं मैथमेटिक्स वाला है ना, वो कितना शानदार है, राइट? Yes, sir. और वो लिखते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड आर सो पावरफुल. My case against mathematics is that the study is too abstract for children. Nearly every child hates mathematics. How example कैसा देते हैं? Though every boy understands two apples, few boys can understand x apples. तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है मैथमेटिक्स में कि दो सेब है ये सब समझता है, लेकिन x एप्पल क्या होता है, that actually makes children really wonder कि ये क्या होता है. So that is giving such example. Reading this, I found कि even if I look into my journey of understanding psychology, it has been like कि थियरी पढ़ो, वाइगॉट्स्की ने क्या लिखा है, पियाजे ने क्या लिखा है, एरिक्सन ने क्या लिखा है, थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं, पावलोव क्या बोलते हैं, वाटसन क्या लिखते हैं. इट हैज बीन सो कंफ्यूजिंग. हम किसी एक का याद करते थे और किसी दूसरे के नाम के साथ उसको अटैच कर देते थे, राइट? एंड स्टिल इट इज. तो मुझे लगता है किसी को अगर साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाना हो तो ये शायद सबसे पहली किताब हो सकती है जहां से अंदर से वो नीड क्रिएट होगा कि अच्छा अब साइकोलॉजी जानना जरूरी लगता है. हम जो सीधे सीधे कह देते हैं कि ये साइकोलॉजी की ये थ्योरी पढ़ लो, तो दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच. आई फील the right approach is to create that need, and this book is the perfect one which creates that need not only as a teacher but also as a parents, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें फील होगी इस किताब को पढ़ते हुए कि भाई साइकोलॉजी जानना हमारे लिए जरूरी है. और तब जब वो नीड पैदा हो जाए तो देन आई रिकमेंड टू बुक्स. वन इज थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, जो मैंने रिसेंटली पढ़ी और बहुत ही पावरफुल. मुझे साइकोलॉजी की इतनी अच्छी किताब पहले हाथ में नहीं लगी थी. एंड द सेकंड आई हैव रिसेंटली रेड, दैट इज अनस्कूल्ड माइंड. तो इस तरीके से साइकोलॉजी में एंटर किया जा सकता है. अमूमन जो बीएड एमएड वगैरह में सीधे थियरी आ जाता है तो वो सीखते हुए मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाया था उन साइकोलॉजी की किताबों के साथ. सो बहुत बहुत शुक्रिया नबीला जी. 8 बज गया, हम लोग टाइम पे शुरू नहीं करते नहीं, हैं. एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ, खत्म नहीं करें. हाँ जब ये जी सर. सवाल, हाँ, सवाल जवाब वाला ही था, तो हाँ उसमें एक सवाल है. किताब क्योंकि मेरे पास हिंदी में है हाँ कि हाँ जो हाँ बच्चा पलटकर जवाब दे, जबान लड़ाए, उसका हाँ क्या किया जाए. तो हाँ इसका जवाब ये देते हैं कि हाँ. समरहिल के बच्चे बदतमीजी से पलटकर हम्म जवाब नहीं देते. बच्चा हम्म ऐसा तभी करता है जब हम्म कोई, और यहाँ पर ये कोट कर रहे हैं, सम्मानीय व्यक्ति उसे हम्म निहायत नीचा मानकर पेश आता है. तो हम्म अगर आप देखें तो एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चे उसी कॉन्वर्सेशन में अच्छे तरीके से भाग लेते हैं जहां पर उनको इक्वली वैल्यूड समझा जाता है और उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है. जब वो वेरी महसूस करते इंटरेस्टिंग. हैं कि सामने वाला मेरी बात को पूरे उसी तरीके से सुन रहा है और तवज्जो दे रहा है जैसा वो किसी मैच्योर एडल्ट की बात को सुनेगा, तो सुनेगा. उस चीज को भी यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छे तरीके से कोट एक्सट्रीमली किया. और वैल्यूएबल वी पॉइंट. हैव एंड वी हैव पांडे सर विद अस. ओह, तो दैट्स ऑसम. यस यस, तो मैं चाहूंगा कि अगर सर कुछ जोड़ना चाहें या कहना चाहें तो उनका स्वागत रहेगा. जी जी हाँ, चंदन जी सर. मुरारी, जी जी सर. हम ड्राइव कर रहे हैं. हाँ ठीक हाँ. है. आप कैमरा ऑन मत और कीजिएगा फिर. सर कैमरा ऑन मत कीजिएगा, ड्राइव कर और रहे हैं हम, तो. हाँ, और हम अभी चूंकि मेरठ हाईवे पर हैं तो इसलिए ज्यादा कैमरा नहीं ऑन नहीं तो नहीं, ऐसे भी प्लीज नहीं करेंगे. ध्यान रखिए सर. हाँ 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 हाँ. और सेकेंड चीज ये है कि हमारा चूंकि वहाँ काफी लेट खत्म हुआ और काफी देर तक बात हो रही है तो हम शुरू से ज्वाइन नहीं करे. नबीला, मैं नहीं सुन पाया, लेकिन लास्ट में जो आपका जिस्ट आ रहा था कि आप साइकोलॉजी को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, वो जी कंफ्यूजिंग है, ये यहाँ से मैं जोड़ पाया था. मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कि अभी कोई किताब मत पढ़िए साइकोलॉजी का. बच्चों की साइकोलॉजी आप अगर ठीक से पढ़ना शुरू करें तो फिर आप को रिलेट कर पाएंगे कि किसी की भी साइकोलॉजी से कि कौन सी साइकोलॉजी हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए जरूरी है. जी मैं जी. आपको इसीलिए, और बच्चों की साइकोलॉजी आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ ट्रू ट्रू. बच्चों से आप उस तरह का अप्लाई करेंगे तो शायद जो बच्चे है वो अपने सिचुएशन के अनुसार, अपनी सोसाइटी के अनुसार, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार साइकोलॉजी लिखी है. हमारे जी इन्वायरमेंट जो हमारे बच्चे हैं वो उसका उसी की भी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, पर्सनल इम्पैक्ट जो उनके फैमिली इम्पैक्ट पड़ता है.
और बच्चे तो उसमें आप जब तक बच्चों के बीच बैठकर नहीं इस चीज को देखेंगे, बच्चे के प्रॉपर नहीं साइकोलॉजी रीड करेंगे, तब आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आप उससे को रिलेट कर पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे उस किताब को कि इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। पढ़ के नहीं, पहले बच्चों को पढ़कर तब किताब को पढ़िए, और जिसको पढ़ें तो आप उसको बेहतर ढंग से बच्चों को से अप्लाई कर पाएंगे, बच्चों के साथ हो पाएंगे। नवीला, सॉरी मैं पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत बहुत बधाई। और अगेन फिर मैं मुरारी जी को, चंदन को और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। अच्छे वर्क कर रहे हैं और इतना कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को, और सभी के साथ जुड़े, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच मुरारी जी। मैं जुड़ना तो जरूर चाह रहा था पहले से। नवीला, सॉरी मैं तुम्हारे पूरा नहीं सुन सर, पाया, कोई लेकिन बात कभी नहीं, बैठ आप कर तुम्हारे इतना साथ। आ गए, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप ध्यान रखिए अपना, ठीक से ड्राइव कीजिए। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। थैंक यू थैंक्स। ठीक है नवीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ऐड किया। हम लोग इस किताब के आसपास जो हमारी बातचीत है उसको यहीं रोकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अभी, रोकने का इन द सेंस लाइव को यहाँ पे हम रोकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। करीब 10-11 साल पहले मेरा इंट्रोडक्शन इस किताब के साथ हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब से ही अभी तक मेरे पसंदीदा किताबों में से एक बना हुआ है ये। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर नेक्स्ट मंथ किसी नई किताब के साथ और एक नए शिक्षक साथी के साथ हम इस मंच पे आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लाइव को अब थैंक यू सर, रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई अभी रियली, सवाल जवाब होंगे। मैं अभी सर को बोल दूं ना, थैंक यू, वो मुझे भी पता अच्छा, है। लाइव रुका नहीं है अभी? हाँ, दैट इज व्हाई। Thank you so much for this opportunity. Yes, you may continue, please. I would like to make, no, I don't have any questions. जी but मैम, जरूर जरूर। I'd just like to make a comment about the conversation that I heard. Yeah. So you've talked a lot about, it was a beautiful conversation which we were into through this session. और आज ही मैं I was reading about Rabindra